Hello dear students, I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to Tufan batch, and yes, economics mein we are done with first two chapters. Yeah, am I right? Yes. We are done with nature and scope of business economics. We are done with theory of demand and supply. कितने units पढ़े हमने उसमें चैतन्य? 3 units पढ़े. पहला unit theory of demand, second theory of consumer behavior, and the third one demand supply. ठीक है? That's that. We move on to our very third chapter, that is theory of production and cost. Under this theory of production and cost, we have 2 units. ठीक है? We have 2 units, theory of production and theory of cost. हमारा आज का टारगेट है कि हम लोग ये दोनों units complete करें. Alright? तो shall we go ahead? Okay. So guys, unit 1 अभी हम लोग start करते हैं. Very good morning Vedanti. Very good morning Aditya. Good morning everyone. Let's get going and let's make a mark. Okay. Oh, see. All right. So yeah, production management is the thing. और अगर हम लोग देखें इंडिया और यूएस में, तो which one is considered as more rich? US, more powerful, more rich, because it has got a very high level of production. The productive activity is very high. Okay, so for every business, you know, productivity is very important, and being efficient is also important. What do you mean by being efficient? What do you mean by being efficient, Vishal? Optimum utilization of resources. That is called as being efficient. So guys, yeah, production, the survival of any firm in a competitive market depends upon the ability to produce the goods and service at a competitive cost. सिर्फ बनाने से नहीं होगा, कम पैसों में बनाने से होगा. हर चीज मेड इन चाइना इतनी पॉपुलर क्यों हो रही थी? Because they were making it cheap, they were selling it cheap then. Okay, one of the principal concerns of business managers is the achievement of optimum efficiency in the production by minimizing the cost of production. The performance of an economy is judged by its level of production. तो गाइस अगर आपने ज्यादा कॉस्ट में बनाया तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो तुम बेचोगे क्यों? तुम बेचोगे नहीं तो फिर प्रोडक्टिविटी फिर से हैम्पर हो जाएगी. कम कीमत में बनाना. The amount of goods and services an economy is able to produce determines the richness. In fact, the standard of living of the people depends on the volume and variety of goods and services produced in a country. Thus, USA is a rich country because of its high level of production. Okay, so that goes without saying. So, tell me, what are the most important resources for a corporate to succeed? 5 M's. What are those, Ishika Bol? Man, money, material, method. Man, machine, material, method and money. हमेशा money आखिरी में बोलना. For obvious reasons unknown. ठीक है? Man, machine, material, method and money. ठीक है? So guys, जो प्रोडक्टिविटी है, सो इसका एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है? सो गाइस सुनो ना, ये फेरारी का इंजन है तो हम लोग ये खरीदेंगे, ट्रू और फॉल्स? हाँ, इंजन ही खरीद के लाया फेरारी का, क्या करो इसका, देखो उसको बस, बहुत ब्यूटीफुल है. नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए भाई, हमें कार चाहिए. हमको इंजन फेरारी का किसका लेना देना नहीं है. कार चलने में अच्छी हो, प्रॉब्लम ना हो, और दिखने में अच्छी हो, चलने में स्मूथ हो. तो गाइस बड़ी लेवल पे कार बनाने के लिए ये सब क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? ये असेंबली लाइन. इसको कहते हैं असेंबली लाइन. पहले कोई असेंबली लाइन वैसे नहीं था. कैसा होता है असेंबली लाइन में? कार के पार्ट को, एक एक कार को जो मेन होता है चेजी, उसको एक एक पार्ट जुड़ते जाता है और फिर आखिर में कार बनता है. ओके, सो फिनिश्ड गुड्स बनाना. सो अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड J.R. Parkinson, production is organized activity of transforming resources into finished products in the form of goods and services. An objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले चेंज द फॉर्म. वेरी गुड प्रसन्ना. प्रसन्ना, दिस इज यू. वेरी नाइस. ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वेरी नाइस. आदित्य, गुड आंसर्स बेटा. चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोगों को टेबल चाहिए तो हम लकड़ा खरीद के लेके आएंगे, है ना? सर आपको टेबल चाहिए था ना, आपको टेबल बनाना पड़ेगा. तो वुडन लॉग इज कन्वर्टेड इनटू table. That is what did you do? We change the form of natural resource. तो guys, production में ये भी productive activity हुई, changing the form of natural resource. Then next is changing the
प्लेस ऑफ रिसोर्स, प्लेस ऑफ रिसोर्स ये क्या है? केजीएफ कौन बोल रहा है? माइन है ना वो। तो हमको कोयला चाहिए तो हम लोग रोज खदान में जाएंगे और खदान से लाएंगे। वेयर आर द कोल माइंस? टेल मी द कोल माइंस, वेयर आर द कोल माइंस? केजीएफ, हाँ केजीएफ में कोल माइंस है। हो गया केजीएफ। अब आगे बताओ कोल माइंस का है? मध्य प्रदेश। और सो कोल माइंस आर मेजरली इन झारखंड। झारखंड बिहार से अलग होने का ताकत तभी बना पाया जब उनको पता था कि भाई हमारे पास क्या है, कोल माइंस है उनके पास। सो चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज, changing the place of resource is also what? It's a productive activity. These are available 12 months in a year. पल पल, क्या पल पल? पल्प, ओ सीबीएसई। लेकिन आमरस की कैनिंग होती है, समझ रहे हो? तो आपने क्या कर दिया? हमने सर इस बार क्या कर दिया? वी हैव मेड इट अवेलेबल एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। ये भी प्रोडक्टिव हो ना सर। आम जो है उसका सीजन है अप्रैल मई जून, खत्म। 3-4 महीने मिलता है साल में, मैं आपको बाकी 8 महीने अवेलेबल करवा के दूंगा। क्या इसमें मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है? आप भी प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस टू ऐड द यूटिलिटी टू द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम बाय, एंड द लास्ट वन, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो क्या मैं आपको अपनी पर्सनल स्किल्स दे रहा हूं? हाँ बोलो ना यार। मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। सो गाइस ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। गाइस अच्छा एमसीक्यू बन सकता है इस पर, और बहुत ही अगर आप यहाँ तक समझो, मेरी बात सुनो। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट बीसीके को बच्चे समझते हैं जनरल नॉलेज है, छोड़ देते। फिर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते, ताव में डिमांड सप्लाई पढ़ते, उसको लगता हमको आ जाता। थर्ड चैप्टर पढ़ने जाते तो ग्राफ में अटक जाता कहीं तो, और फिर 3-4 चौथा भी नहीं जमता। फिर बिजनेस साइकिल जैसे जैसे करता उसको लगता 5 चैप्टर पढ़ ले, हो गया मैटर खत्म। और फिर एग्जाम देने जाते, 45-50 मार्क्स लेके आ जाता वो। इसमें 45-50 से काम नहीं बनेगा। 45-50 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट इट विल नॉट हेल्प यू। मैथ्स में आएंगे क्या मार्क्स? अगर यहाँ नहीं आएंगे तो मैथ्स में खुद के ही आ गए ना, अगर मैथ्स में अगर खुद के 40 आ गए तो भी बहुत है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। मैंने मैथ्स के टीचर से डिस्कस किया तो कहते हैं 50 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं मैथ्स में। 50 अच्छे, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं मैथ्स में, ऐसा। एनीवे, सो गाइस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, बिल्कुल जान लगा दो। यूटिलिटी, ठीक है, यानी हर चीज का यूटिलिटी बढ़ा दो। क्या कहते हो? हर चीज का यूटिलिटी बढ़ा दो। चार्ट अकाउंटेंट कौन से एग्जाम्पल में फिट होता है बताओ? है ना, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स। बहुत बढ़िया आयुष, गुड गुड गुड। ठीक है, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज इज द सेम, namely to create the utility in some manner. Thus, production is nothing else but creation of utilities in the form of goods and services. For example, in the production of woolen suit, utility is created in some form or the other. तो guys, किसी भी चीज का आप फॉर्म यूटिलिटी चेंज करो, प्लेस यूटिलिटी करो, टाइम यूटिलिटी करो या पर्सनल यूटिलिटी करो, आपकी एक्टिविटी कैसी होगी? प्रोडक्टिव होगी। फॉर्म यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्म इट। इसका एग्जांपल क्या है? वुडन लॉक कन्वर्टेड इनटू टेबल। प्लेस यूटिलिटी, कोल। टाइम यूटिलिटी, मैंगो पल्प। ठीक है, एंड देन पर्सनल यूटिलिटी तो ये तो स्किल्स है। ठीक है, मम्मी जो हमारे लिए खाना बना के देती है, क्या वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है? सुनो, ज्यादा अगर मगर मेरे को बताओ मत। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, मम्मी जो हमारे लिए खाना बना के देती है, हमको परोसती है, प्यार देती है साथ में, तो क्या वो प्रोडक्टिव में कंसिडर करेंगे? है ना? कितने लोग कहते हैं हाँ? मम्मी है वो, मम्मी नॉन प्रोडक्टिव कैसे हुई? ज्यादा पर्सनल मत बनो, ठीक है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटेंशन फॉर exchange in form of money or something. So guys, intention to exchange it in the market is an essential component of production. ठीक है, मम्मी ने थोड़े चावल कम दिए, अरे आज वो मार्केट में देने बचे हुए, तू कम खा, ऐसा होता है क्या?
नहीं ना. So there is no intention. So guys, the money expenses incurred in the process of production, that is transforming resource into finished goods, constitute the cost of production. Although cost of production is not taken into account for pure production analysis, it is an extremely vital matter for any business for decision making. Cost कितनी है उसके ऊपर ही पूरा खेल है. तो हम लोग theory of production भी पढ़ने वाले हैं और theory of cost भी. What are the various factors of production? Anyone? Suhas? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो गाइस ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. लैंड इज फ्री, ट्रू और फॉल्स? मैं बताता हूं तुमको. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट्स नॉट फ्री, सो फ्री गिफ्ट, यानी बनाना ही पड़ रहा हमको लैंड. ठीक है. सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, ये सही है क्या? सप्लाई लैंड ऐसा थोड़ा और दूसरा प्लैनेट निकालना पड़ेगा फिर. सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, लेकिन हमको खरीदना है तो हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा एक लिमिटेड रहेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे लिमिटेड है. करेक्ट है. लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी. देन लैंड इज परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर्स. लैंड तबाह कर दिया, ऐसा होगा कि कभी? कितने बड़ा बम फोड़ो, जमीन तो रहेगी ना, मिट्टी आमा हो जाएगी बस. देन लैंड इज अ पैसिव फैक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैसिव फैक्टर? हाँ, यानी खुद कुछ नहीं प्रोडक्टिव हो सकता, वो उस लैंड पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. देन लैंड इज इमोबाइल. ठीक है, इन्हें लैंड को नहीं ले सकते. इन्हें जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र इज वेरी फर्टाइल सॉइल इन कंपैरिजन विद सेंट्रल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा. एम आई राइट? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग. इन्हें सेंट्रल महाराष्ट्र मराठवाड़ा से कंपैरिजन में वेस्टर्न महाराष्ट्र की लैंड ज्यादा फर्टाइल है. एम आई राइट? मिट्टी अलग है. दिस इज रेड सॉइल and this is black soil. I hope I'm right. The Pathan girl, सही है कि नहीं पता है? Geography, भूगोल. Geography का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट. तुम छोटे भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ तुमको, अपने छोटे भाई या जो भी लोग पढ़ते हैं तुमको दिखते हैं, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से जनरली नफरत होती है उनको. बताना उनको ये जरूरी है कि तुम मार्क्स के लिए मत पढ़ना बेटा, तुम मार्क्स के लिए मत पढ़ना, बस पढ़ लेना कि यार हमें पता रहना चाहिए. समझ रहे हो? छोटे भाई को डांटना नहीं, ज्योग्राफी में 40 मिनट तो भी चलता अपने को. ठीक है. लैंड इज इमोबाइल. अपने यहाँ प्रॉब्लम ही है, सब कुछ मार्क्स पे डिपेंड करता है, मार्क्स से जज नहीं करना ज्यादा. लैंड इज इमोबाइल, यहाँ नहीं ले जा सकते. लैंड इज मल्टीपल यूजेस. क्या क्या यूजेस है लैंड के? अरे बहुत है, बहुत. हाँ. देन लैंड इज हेट्रोजीनस. व्हाट डू यू मीन हेट्रोजीनस? डिफरेंट. मैंने भाई वेस्टर्न महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल, सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न महाराष्ट्र रेड सॉइल, सेंट्रल इंडिया ब्लैक सॉइल, यू नो, सबका अलग अलग हेट्रोजीनस है. लेबर इज व्हाट? ह्यूमन एफर्ट. लेबर इज पेरिशेबल, यानी हम लोग उसको स्टोर करके नहीं सकते. आज की मजूरी रख के जाए यहाँ, ऐसा नहीं होगा. इट इज पेरिशेबल. लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर. लेबर वॉज अ पैसिव फैक्टर. लैंड इज एन एक्टिव फैक्टर. लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर. तो जो प्रोडक्टिव है वो एक्टिव, जो प्रोडक्टिव है वो एक्टिव, जो खुद से प्रोडक्टिव नहीं है वो पैसिव. परफेक्ट. लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर. लेबर तुम लेबर से छीन नहीं सकते. लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर. ये सही है. यानी अगर हम मजदूरी कराए तुम लोगों से तो सब लोग इतनी ताकत दे पाएंगे क्या? है ना? जैसे हम लोग रविंद्र जडेजा की जगह गौरव को बेचते अगर सीएसके के लिए, तो छक्का मार पाता क्या गौरव? चौका तो मारता. So guys, labor power differs from laborer to laborer. कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं हमारी क्लास में? क्रिकेटर है? क्या बात है, वेरी नाइस. देन लेबर पावर, देन ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव. ये भी सही है. ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, खुद को देख लो. देन लेबर पावर इज पुअर बार्गेनिंग पावर. कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है बेचारों का. पूरा दिन भर काम करते हैं 100 रुपए के लिए, पूरा दिन भर काम करते हैं 100 रुपए के लिए. ऐसे भी लेबर है इंडिया में. लेबर इज मोबाइल. लेबर को ले जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, बस में भर भर के ले जा रहे हैं. आप पुणे की एक एक्सप्रेस है, मैं क्या नाम है उसका, ट्रेन है, वहाँ से आती है कोलकाता से, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस. करेक्ट, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस. कभी बैठे उसमें? आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में अगर आप जाओगे, कभी आओगे, तो आपको ना जनरल डब्बे में लेबर ही लेबर मिलेंगे. वहाँ पे इतना भरा होता है, वहाँ सांस नहीं ले पाता है कि जनरल इंसान. लेबर ही रहते हैं उसमें सारे, जनरल के बॉक्स में. कोलकाता से सारे पुणे आ रहे हैं फॉर वर्क. मोबाइल है वो. देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड ऑफ इट. और 2000 लेबर चाहिए, गप से पैदा करो, ऐसा नहीं होगा. इमीडिएट सप्लाई नहीं हो सकता.
चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, ये एक प्रॉब्लम है। लेबर को ना थोड़ा सा भी काम कर लिया ना तो उनको एक हफ्ते से आराम चाहिए होता है, और काफ़ी लेबर्स बहुत लेजी होते हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। कैपिटल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो जो आपके मशीन्स वगैरह होते हैं वो सब क्या है, फिक्स कैपिटल। आपका जो रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, वो सब क्या है, हाँ रॉ मटेरियल है। किस टाइप का कैपिटल है वो, किस टाइप का कैपिटल है प्लीज, वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। देन फैक्ट्री एंड ऑल, दीज आर व्हाट, रियल कैपिटल। फैक्ट्री एंड ऑल रियल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स भी है क्या कुछ, ह्यूमन रिसोर्स इन इटसेल्फ इज आल्सो अ कैपिटल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेटेंट्स की, तो पेटेंट कैसा कैपिटल है, पेटेंट्स इंटेंजिबल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, अर्बन इंफ्रा, these are examples of social capital. So guys, fixed capital, tools and machine, guys इसको स्टामक कर लो, इसमें से एमसीक्यू पूछते हो। Then circulating capital, seeds, fuel, raw material, real capital, physical goods, human capital, human skills and ability, tangible and intangible capital, patents, goodwill, patent rights, etc. Individual capital, the personal property, और जो सबके काम के है वो है social capital। भाई एमसीक्यू के लिए अच्छा एरिया है। Alright, so guys, these are the various types of capital. MCQ gold. Hi Viraj, hi Ayush, क्या बोल रहा है बेटा? Hi. Raise your hands. Difficult question. What are the various stages of capital formation? Bhavya बोल. What are the various stages of capital formation? Parth, stages of capital formation. बैठना तो दे साले. Stages of हर्ष बोल. Investment पहले. बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देन इन्वेस्टमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है हायरार्की, क्रोनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले बच्चा कर लिया, फिर शादी कर ली, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना इसमें, हाँ थोड़ा सा वैसा ही है वो। तो पहले सेविंग्स, फिर सेविंग्स यहां वहां डालना, दैट इज मोबिलाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। तो भाई जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उससे क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। राजू भैया, इज ही एन एंटरप्रेन्योर, इज ही एन एंटरप्रेन्योर? सुहास क्या बेच रहे भैया, ककड़ी मत बोल, क्या बेच रहे भैया? भिंडी, हाँ फेवरेट सब्जी भिंडी है, तो शेव भाजी तो बता भी रहा वो, बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी। सो इज ही एन एंटरप्रेन्योर, यस और नो सुहास? तो हाँ बोला ना पहले, ये ना बोल रहा सर। विशाल तू क्या बोल रहा? कुछ नहीं बोल रहा राजू भैया इज एन एंटरप्रेन्योर, ऋषिका नो, गौरव, विशाल, क्यों विशाल? नो, नो क्यों? तूने बोल दिया इसलिए मैंने मना कर दिया, ठीक है, पर नो क्यों? आर्यन, कोई रिस्क नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। सो सबसे पहला है इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, ये होना चाहिए पहले। बिजनेस एंटरप्राइज, एंटरप्राइजिंग होना चाहिए वो बंदा, तभी वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। देन रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। अबे रिस्क क्या है इसमें, इसमें रिस्क क्या है ककड़ी बेचने में? होलसेलर से भाजी ली, हाँ वेरी नाइस। और अब बेचना है, तो सब्जियां तो बिकी जाती यार। अरे कैसी बात करो तू अच्छा एक मिनट सुनो ना, मार्केट से ये लोग 10 रुपए की चीज ले आते हैं, फिर ये लोग, मैं बता रहा हूँ तुमको, यानी मैंने ऐसी फन के लिए मैं मामा के खेत जाता था, और हम लोगों ने 2-1 घंटे टमाटर तोड़े थे, और जो सड़े हुए टमाटर थे एक दूसरे को, कजिन्स को एक दूसरे को फेंक के मार रहे थे। फिर मामा को बोले गेम खेलेंगे, मामा ने हमसे काम करवा लिया था। हमने 6 सिबलिंग्स मिलके 2 घंटे में हमने अराउंड 5 टमाटर के बड़ी बड़े, ये क्या वो कैरेट, मुझे नहीं वट, टोपला, कैरेट वगैरह इतने रिच नहीं हम लोग, ठीक है, इतना बड़ा टोपले में हमने, ठीक है, यू वोंट बिलीव इट, एक टोपला वाज सोल्ड फॉर 85 रुपीज ओनली।
ओनली 85 रुपीज, उससे भी सॉरी उस वक्त उतना मिला पैसा, ठीक है 85 रुपीज, यानी हम लोगों ने इतनी मेहनत की 2 घंटे, उससे 500 रुपए भी नहीं बने मामा के। एनीवे अनइंपॉर्टेंट। और ये रिटेलर्स कितने में बेचते हैं? पर केजी में बेचते हैं वो लोग, समझ रहे हो? अच्छा मार्जिन है। और जो खराब हो जाते हैं वो आजू बाजू में बांट देते हैं, वो लोग खराब होने वाले होते हैं, खुद ही बना लेते सब्जी, समझ रहे हो ना? टोमेटो चटनी आज, क्योंकि टमाटर बच गए, आप समझो। तो इसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है। एनीवे एंड नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है वो। ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिंग में नुकसान कैसे होगा? बेच दोगे ना, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स इनोवेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल मी हु डिस्कवर्ड कैपिटलिज्म? एनी क्लू? जोसेफ शम्पीटर, ठीक है, बस याद रखना इस चीज को, शम्पीटर। स्कम नहीं बोलना, स्कम इज अ बैड वर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट, ठीक है। तो सुनो ना, कोविड के वक्त कौन सी मशीन की जरूरत थी? वेंटिलेटर्स की। कौन सी कंपनी थी जिसने अपने ट्रैक्टर बनाना बंद करके वेंटिलेटर्स बनाए थे? महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा ने ट्रैक्टर की असेंबली बंद करके वेंटिलेटर्स बनाए थे इंडिया के लिए। रेज योर हैंड्स, दिमाग लगाओ, कौन सा ऑब्जेक्टिव सर्व किया है? द आंसर इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव सर्व किया, इंडिया को प्रायोरिटी दी उन्होंने, सोसाइटी को भी हेल्प की, बट प्रायोरिटी वाज इंडिया। वॉर हो गया ना, तो ये सब लोग वेपन्स बनाने लग जाएंगे, क्या होगा? इंडिया को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। रेज योर हैंड्स। अगर मैं मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रहा हूं, कौन सा ऑब्जेक्टिव? मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैं सोसाइटी की चिंता कर रहा हूं, सोशल ऑब्जेक्टिव। मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, परफेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, परफेक्ट। मेरे जो एम्प्लॉयज है वो अच्छा डेवलपमेंट हो उनका, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, परफेक्ट। इन पर्स्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज एक्शंस में बी कंस्ट्रेंड बाय मेनी फैक्टर्स। पहला, लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, पता ही नहीं रहता ऐसा करना पड़ता, ये एक प्रॉब्लम है। देयर मे बी अदर कंस्ट्रेंट्स लाइक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्शन प्राइस मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स। कई क्या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है प्राइसेस पे या बेचने पे ही, ये बिकेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है? पल्सेस का जब महंगा हो गई थी दाल इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, और मेरा दाल इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने का ही धंधा था, लग गए मेरे। मैं मास्क बनाता था, N95 मास्क 200 रुपये में बेचता था, गवर्नमेंट ने कैप लगा दी, 25 रुपये के ऊपर बेच नहीं सकते। भाई मैं तो लग गया, मेरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का क्या हो गया? लग गए तेरे भाई, सॉरी भाई। सो गाइस कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। देयर मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसीज एंड कंसिक्वेंट सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। फंस जाती है चीज़ें यार, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मेरे गांव तक सड़क ही नहीं है। ऐसा होता है कि गांव तक सड़क ना होना, ऐसा होता है क्या कि गांव तक सड़क नहीं है? मेन रोड से गांव 5 किलोमीटर अंदर है और सड़क नहीं है, होता है ऐसा, बहुत जगह होता है, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज का प्रॉब्लम, चेंज इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इवेंट सच एज इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो दीज आर द वेरियस एंटरप्राइज का कंस्ट्रेंट्स, ये सब ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे? बताओ तुम ही बताओ, कौन सा ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे? बताओ। हाँ देखा, नेशनल। कितने लोग नेशनल कह रहे हैं? कितने लोग इकोनॉमिक कह रहे हैं? कितने लोग नेशनल कह रहे हैं? नहीं अच्छी, तुम्हारे मन की अच्छा ही है बेटा ये। कितने लोग सोशल कह रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं? कितने लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं? इंसानों को इज्जत ना है, ह्यूमन छोड़ रहे हैं, मरने दे सालों को, ऐसा। देखो ना, सबकी विचार अलग अलग है। अगर नेशनल ऑब्जेक्टिव को आगे रखेंगे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हिट हो जाएगा। सो गाइस, किसको प्रायोरिटी दे, यही बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे पढ़ाई को प्रायोरिटी दे या फिर नए रिलेशनशिप को। प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। लोकेशन एंड द साइज ऑफ द प्लांट। टाटा नैनो का जो प्लांट था पहले कहां आने वाला था? टाटा नैनो का प्लांट पहले कहां आने वाला था?
वेस्ट बंगाल में कहां? वेस्ट बंगाल में कहां? कम ऑन जल्दी। सिंगूर। रेज हैंड्स। सिंगूर क्यों? सिंगूर में से क्या खास बात है? देखा नहीं, एक नहीं, वो नहीं पता मुझे। चैतन्य बोल। करेक्ट, पास में ही टाटा स्टील का प्लांट था जमशेदपुर, और सबसे मेजर रॉ मटेरियल होता है कार बनाने में, स्टील होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती थी, इसलिए सिंगूर किया। लेकिन वहाँ पे वेस्ट बंगाल में उन्होंने, गवर्नमेंट ने उसको बाहर कर दिया और फिर सनन गुजरात में चला गया प्लांट। सो लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड साइज ऑफ द प्लांट, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटी। व्हाट मीन बाय फिजिकल फैसिलिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है फिजिकल फैसिलिटी? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस कार बनाने के लिए क्या लगता है? क्या मशीन बोलते हैं उस मशीन को? कार बनाने की फैसिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? करेक्ट, द वर्ड इज असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइंस भी तो लेना पड़ेगा, फिजिकल फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी। रेज हैंड, कार बनाने के लिए जो येलो कलर के जो असेंबली लाइंस है, इसको किस टाइप के गुड्स बोलते हैं? ट्रेडिशनल, कैपिटल गुड्स, इनको कहते हैं कैपिटल गुड्स। रेज हैंड्स, कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंट्रीज बताओ। श्रीलंका, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, यूएस। पाकिस्तान वालों की बस की नहीं, सुई नहीं बना पा रहे वो। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अडानी का क्या प्रॉब्लम है पैसों का? ओए अडानी का बहुत प्रॉब्लम है, पूरा लोन पे है पूरा खेल। एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1, एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। अडानी का है 28:1। व्हेन इट विल फॉल इट विल कम डाउन वेरी फास्ट, संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे घर पे किसकी चलती है? हमारे घर पे बोलो। वेरी गुड विराज। पप्पा, ये पप्पा, पापा के बाद किसकी चलती है? मम्मी। चाचा, बड़े पापा है क्या घर पे? तो चाचा, बड़े पापा, फिर उसके बाद हम आएंगे, पपलू टपलू करेगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है क्या? एक डायरेक्टर रहेगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक फाइनेंस, एक ह्यूमन एंड आईटी मैनेजर जी रहेगा। हर्ष, साक्षी, सौजन्या और अथर्व, तो ये सब क्या है? हमारे मैनेजर्स है, ये सब हमारे मैनेजर्स है। सो गाइस, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना पड़ेगा। गलत आदमी को गलत जगह डाल दिए, फाइनेंस मैनेजर है साक्षी को, उड़ाते जा रही पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। यू हैव टू हैव अ गुड स्ट्रक्चर। काफी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गड़बड़ होते हैं, मैं इसके अंदर काम क्यों करूंगा, ऐसा एटीट्यूड होगा तो गड़बड़ हो जाती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मार्केटिंग। रेज योर हैंड्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स? रेज योर हैंड्स, डोंट लीक इट। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स काय आहे? कसं होणार असं? विधी बोल। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। रेज योर हैंड्स। प्रमोशन के अंदर दो एग्जाम्पल्स दो। बीसीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रमोशन के अंदर दो एग्जाम्पल्स। हाँ, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। उनको बोलो फेल करके दिखाओ। मत बोलो, कुछ मत बोलो। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीगल फॉर्मेलिटीज। यू नो, लॉ को फॉलो करना इट्स नॉट इजी। पूछ लो इंटर वालों को, कितने सारे लॉ है, कब डिविडेंड दे सकते हैं, कब डिविडेंड नहीं दे सकते, है ना। और अगर डिविडेंड कितने दिन में पे करना है भव्या? इंटर में गए हो तो कुछ तो आना ही चाहिए ना। डिविडेंड कितने दिन में पे करना डिक्लेयर करने के बाद? इंटर का क्वेश्चन है ये। अरे इंटर की स्टूडेंट को फाउंडेशन का सवाल क्यों पूछूं? 30 डेज, करेक्ट, ठीक है। तो वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग बनाया हमने। जिसको भी ज्यादा टाइम लगे ना, चिंता नहीं करना, कहीं ना कहीं तुमको इंटर में फायदा होगा, ठीक है। भव्या कुछ नहीं, कीप स्टडिंग, हाँ बेटा, ठीक है। क्लास के बाद तुम डेफिनेटली मिलो, वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। नहीं कैसे, ऐसा नहीं है, कैसा ना, हमें नहीं आता ना, ऐसा कोई रैंडमली कुछ भी पूछेगा एकदम क्लिक नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ, हैव अ प्लान फॉर व्हाट यू डू। यू शुड हैव अ रोड मैप कि मैं 2023 में क्या करने वाला हूँ, मैं 2024 में क्या करने वाला हूँ, 2025 में, 2026, 2027। नहीं तो 27 तक नाक ही साफ करते रह जाओगे।
यू शुड हैव अ प्लान फॉर एवरी ईयर, ठीक है. देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्री के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वर्कर लोगों का? धरना, स्ट्राइक पे चले जाते साले लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है. यानी महिंद्रा का ओनर कौन है? आनंद महिंद्रा. लिटरली मरते मरते बचा है वो लेबर स्ट्राइक के बीच में, ऑलमोस्ट मर जाने वाला था वो, ठीक है, क्योंकि कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं थे और लेबर भी पुराने जमाने के थे, लेबर को पैसा भी नहीं मिल रहा था. पैसा नहीं मिला तो मेहनत कैसे करेगा वो? फिर बहुत सारे एक्विजिशंस किए, मर्जर्स किए, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस किए. महिंद्रा ने किसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया है? रेनो, फ्रेंच कंपनी के साथ. फिर उनकी अपने आप पीछे घूमने वाली कार स्कॉर्पियो, सिंघम वाली कार बनाई, ये सारी बनाई, फिर बनी है वो सब, ठीक है. फिर महिंद्रा इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स टुडे, यू नो दैट, ठीक है. दीज आर वेरियस एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम इन अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, चलो ग्रेट. वी मूव अहेड विद प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय? अच्छा, डिमांड फंक्शन इन्हें क्या था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स विच आर वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, जिस पे डिमांड डिपेंड करता है. करेक्ट, यही था, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं. सो द वेरियस प्रोडक्शन फंक्शंस. प्रोडक्शन फंक्शन को लेके फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, Q is the function of A, B, C, D and N. What is A, B, C, D and N? Q stands for rate of output of the given commodity. A, B, C, D to N are the different factors and services used per unit of time. याद है ना डिमांड फंक्शन? Raise your hands. PX, M, PY, PC, T और A. कौन बताएगा बिना नीचे देखे? PX, what is PX? Price of the commodity X. Then what is M? Money, income. PY, price of the substitutes. साक्षी, substitutes. Substitute क्या दूसरा क्या आता है? Perfect. Raise your hands. Price elasticity of substitutes पॉजिटिव होता है नेगेटिव? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव होता है नेगेटिव? डर मत, कुछ नहीं होता, होने दे गलत. रेज योर हैंड्स. तो बाकी लोग के साथ शेयर जैसे सर. सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव होता है? हम इसमें अग्री, हम इसमें डिसअग्री? पक्का बोलो. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पक्का? तुमने कल ग्राफ बनाया था? ठीक है, बच गया. टी इज द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ए इज द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी होती है क्या? Raise your hands. Give me the formula for advertisement elasticity of demand. Come on. न्यूमरेटर कौन रहेगा? देखो मैंने सिखाया था आपको एक फंडा. न्यूमरेटर कौन रहेगा? विशाल बोल. हाँ, नहीं आंसर नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा आंसर उसका. ओम बताएगा. परफेक्ट आंसर, ठीक है. मेरा सवाल है आपके लिए. उन्होंने कहा परसेंटेज चेंज इन डिमांड. कैन आई राइट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? रेज योर हैंड्स. व्हाई नॉट? आराम से, रिलैक्स. जल्दी कर रहा हूं क्या मैं? प्रेशर डाल रहा हूं क्या मैं? डांट रहा हूं क्या मैं? आराम से बता. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नहीं होता है, इलास्टिसिटी डिमांड होता है. हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन करते वक्त ही क्वांटिटी डिमांडेड आता है, बाकी सारे फैक्टर्स के वक्त याद रहेगा. ये एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? जो ज्यादा वेरी करता है, जिसका क्वांटम वेरी करने का ज्यादा होता है उसके एक्सिस पे लेते हैं. जिसका क्वांटम ज्यादा वेरी नहीं करता उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं. कुछ नया सीखा? ठीक है, गुड. नेक्स्ट, बहुत बढ़िया. अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. अजम्पशन इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में क्या इन्वॉल्व हो जाता है? ह्यूमन बिहेवियर. और ह्यूमन येड़ा रहता. सही है ना? ह्यूमन येड़ा रहता, पकड़े रहता. कंज्यूमर्स आर इरैशनल. याद आ रहा है क्या कुछ? ज्यादा फास्ट हो रहा क्या? परफेक्ट. सो इरैशनल रहते हैं, अजम्पशंस थोड़े लेने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हर जो आउटपुट होता है वो हमेशा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड रहता है. देन द सेकंड अजम्पशन है इट इज द गिवन स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. यानी कैसा है ना, जो हमारा गैराज है वो ऐसा ही रहेगा. अगर तुम इस गैराज की कंपैरिजन इस गैराज से करोगे तो आउटपुट अलग रहेगा क्या? सोचो, गैराज नंबर 1 एंड गैराज नंबर 2, क्या आउटपुट अलग रहेगा? यहां के एम्प्लॉयज कितने मोटिवेटेड रहेंगे यार, एसी में काम कर रहे हैं, यहां पे तेल की जगह पसीना डाल रहे हैं गाड़ी में.
ठीक है, तो यार अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज कर दोगे तो आउटपुट भी चेंज होगा, क्या कहते हो? जैसे यानी इस क्लास को मैं जितना फास्ट पढ़ा सकता हूं, अगर मैं पीपीटी नहीं दिखाऊंगा तो उतना फास्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कोई भी अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, पूरा रिलेशनशिप बदल जाएगा इनपुट आउटपुट का। थर्ड assumption is that input combination are included in a particular function, the output resulting from the utilization at the maximum level। optimum utilization of resources हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन मेजरली किस पे डिपेंड करता है? पैसों पे और लेबर पे, ठीक है। सो गाइस प्रोडक्शन फंक्शन क्यों, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहां तक सब सही है? रेज हैंड। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस इज ऑफ टाइम, ट्रू और फॉल्स? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस इज ऑफ टाइम, ट्रू और फॉल्स? इशिका? फॉल्स। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में टाइम का डिफरेंस नहीं है। रेज हैंड्स। फॉल्स कह रहे हो सही में? ऑनलाइन वालों कम ऑन, वेयर आर यू? राजेश्वरी वेयर इज द समोसा? कम ऑन राजेश्वरी फॉल्स कह रही है यार, बहुत बढ़िया। फॉल्स है? नहीं, ऐसा पढ़ के नहीं मिलेगा विशाल, पढ़ के नहीं मिलेगा, रिलैक्स, बी ए गुड लिसनर। पूर्णिमा, नारायणी, प्रसन्ना, हाँ ट्रू है, वही तो मैं कह रहा हूं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन टाइम, ट्रू। नहीं, हम आपको इतना जान गए ना, अब जो आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो ट्रू तो है ही नहीं इसका आंसर। भव्य, ट्रू है फॉल्स? मेरे को क्या मालूम है, मैं सर फाउंडेशन और इंटर के बीच में, वो भी मैं किधर भी नहीं है। आर्यन? तुम्हारा मंसूबा सही है, रेज हैंड्स। तुम्हारा मंसूबा सही है आंसर का, पर तुम्हारा लैंग्वेज गलत हो गया, चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज गॉन रॉन्ग। विधि? रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। उसको मैं उसका आंसर उसको देना, दोनों उसको बोलने में नहीं दे रहे बेचारे को। बोल बेटा। इनपुट आउटपुट, ठीक है। का हर्ष? इनपुट कितना वैरी कर सकते हैं लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में इनपुट ज्यादा चेंज कर सकते हैं अपन, और शॉर्ट रन में उतना चेंज नहीं कर सकते। साक्षी? वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, लॉन्ग में। वेरिएबल चेंज, वेरिएबल तो चेंज ही होगा ना, नाम ही उसका वेरिएबल है। क्या बढ़ा सकते हैं? क्यूटी, वेरिएबल का मतलब ही जो वेरी करता है ना, तो क्या बढ़ाना है तेरे को? हाँ, ये क्या है? यूज द राइट वर्ड्स ना, व्हाट आर यू डूइंग? पार्थ बोल। कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। क्यूटी प्रोडक्शन बढ़ रहे ना हम लोग। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन में एकदम से चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में हम लोग हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है और वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। कहीं सुनो ना, आपको समझ में आ रहा है, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स मुश्किल है। मैं आपको क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? एमसीक्यू है सर, मैनेज कर लेंगे हम, मैं समझता हूं, लेकिन इंटर में नहीं है ना वैसा, वहां फंस जाओगे। इंटर में इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस इज टोटली थ्योरी, एक भी एमसीक्यू नहीं आता। अ लेसन हाफ लर्न्ड वुड रिपीट इटसेल्फ, याद रखना। फाउंडेशन में फेल होना फिर भी आसान है, इंटर में फेल होना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तब 8 वापस पढ़ना पड़ेगा। 8 सर, टप टप पानी गिरता बुक में, कोई बात नहीं। In economic analysis, between the short run and long run is not related to any particular measurement of time. It is not related to any particular measurement of time. ये मेरी Volkswagen की कार बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे एक दिन में मैं 50 कार बनाता था। हाँ, एक ना 50 कार बनाता था मैं, ठीक है। अब मुझे आज 100 कार बनानी है इस फैक्ट्री से पर डे, बनेगी क्या? पर कैपेसिटी कहाँ से लाएगा? 50 की कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा 55 बन जाएंगे। 55 से ज्यादा बनाने जाएगा तो जल जाएगी ना तेरी मशीनें। साक्षी, कौन सी गाड़ी है तेरे पास, कौन सी बाइक है? एक्टिवा, वेरी नाइस। एक्टिवा पे कितने लोग बिठाए तूने मैक्सिमम? 2, 3 तेरे साथ आ गए? पूछ रहा हूं मैं, पूछ
देखो यार अबे साक्षी सो क्यूट ऑफ यू। अरे मैं देखो मोटा कौन बोला, मैं मोटा बोला देखो, यू नॉट यू वेरी नाइस, ठीक है। सुनना अब सुनो ना, एक एक्टिवा पे मैं चाय पीने, कौन कौन जा रहा है मेरे साथ चाय पीने, वेरी नाइस। मैं एक्टिवा की चाबी है, चाबी दे, अभी नहीं है, वेरी बैड। तो ओम दे बेटा चाबी, फेक फेक ना। इंडिया में सब क्रिकेटर रहते हैं, समझ रहे हो क्या, तो हमको मौका नहीं मिला, तो हम सब आईपीएल में होते। क्यों गाइज, हमारे नहीं बना, पूरे नहीं पुनेरी पलटन बनाओ हमारी टीम, हम सब आए। एनीवे, तो एक एक्टिवा पे कौन कौन जा रहा है, मैं आ रहा हूं और प्रिंस पार्थ, ये प्रिंस और पार्थ तो हमेशा आएंगे मेरे साथ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओम, देन हर्ष, देन आर्यन। क्या ये गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर चढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, चक्का कब से उड़ेगा ऐसा उसका, समझ रहे हो, खराब हो जाएगी वो। उसकी कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 3.5 लोग, है ना, एक को आगे फिर एक बीच में, छोटा सा जो दूसरा था हमारा, चल नीचे बैठा था, हॉर्न बजा तू, इतने ही लोग रहते, उससे ज्यादा नहीं, कैपेसिटी है ना। सर मैं 12th का बीए एडमिशन कैसे करूं, 12th के बाद एडमिशन कैसे करूं, खर्चा कितना आएगा, मोटिवेशनल खरी जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं पूरा आपको बजट बना के देता हूं आपका, ठीक है, क्यूट ऑफ यू, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। सो मुझे अगर ये 50, ठीक है, मुझे अगर ये, मेरे पास है ये गाड़ियां, ओ मेरे पास है गाड़ी, मुझे अगर 50 कार पर एनम की फैक्ट्री है मेरे पास अगर, और मुझे इसको मैं अगर 100 बनाने, तो एक दिन में थोड़ी ना फैक्ट्री बड़ी हो जाएगी। तो अगर मुझे 50 की कैपेसिटी 500 पे ले जानी है, तो बड़ा फैक्ट्री लगेगा। ये बड़ा फैक्ट्री एक दिन में बनेगा क्या, उद्यापासून 500 बनवू कुठना, ठीक है। So guys, in fact, it refers to the extent to which firms can vary the amount of inputs in the production process. आप कितना इनपुट बढ़ाओगे हर चीज का, नहीं, एक्टिवा में 7 लोग बिठाएंगे, ज्यादा तेल डालेंगे, ऐसा थोड़ी होता, कितना डालेगा, कैपेसिटी है ना हर चीज की, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि a period will be considered in short run if the amount of at least one input remains unchanged. एक जो input है वो unchanged रहेगा during that period. The short run function shows maximum amount of goods or service that can be produced by a set of inputs, assuming that at least one of the inputs remains unchanged. यानी एक जो input है वो change नहीं होगा, और मोस्टली वो होता है कैपिटल इनपुट, फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री थोड़ी एक दिन में बन जाएगी, अरे बहुत पैसा अपने पास, अपन शरद पवार की राइट हैंड है, तो भी नहीं। पैसों का काम पैसा करेगा, लेकिन समय का काम तो समय करेगा। कोई बड़े आदमी का बच्चा 2 महीने में निकल जाएगा क्या बाहर, नहीं ना, उसको तो 9 महीने लगेंगे ही ना, समझ रहे हो क्या। देन जनरली, अरे मेरा मुंह मत खुलाओ यार तुम, oh God, I'm so sorry. Okay. Generally, it is observed that during the short run or in the short run, a firm cannot install a new capital equipment to increase the production. It implies that capital is a fixed factor in short run. Thus, in the short run, the production function is studied by holding the quantities of capital fixed while varying the amount of other factors. This is done when the law of variable proportion is studied. तो हम लोग पढ़ेंगे ये असेंबली लाइन वगैरह वगैरह एक दिन में चेंज नहीं होते सर, लेकिन कर सकते ना चेंज, लोगों ने बढ़ाई है ना मशीन। फोक्सवैगन की खुद की पहली फैक्ट्री देखो कैसी थी, और आज की फैक्ट्री देखो स्टैटनबर्ग जर्मनी में, एक दिन में 12,000 कार बनाते हैं, एक दिन में, मैं तो साल की बात बताऊं, एक दिन में 12,000 कार बनाते हैं ये। फोर्ड, टोयोटा वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट car manufacturer till 2020. 2021 onwards it has been replaced by Volkswagen. नाम ही है ना फोक्स यानी क्या, पीपल, द पीपल्स कार इट वाज। हिटलर की फंडिंग थी उसको, हिटलर ने बनवाई थी ये कंपनी। सो गाइज, शॉर्ट रन में हम लोग फैक्ट्री बड़ी नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में हम फैक्ट्री बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना, production function can also be studied in long run. The long run is a period of time in which all the factors of production are variable. It is the time period when the firm is able to install new machine ला सकते हैं, capital equipment ला सकते हैं by increasing the variable factors of production. The long run production function shows the maximum quantity of goods and services that can be produced in a set of inputs, assuming that the firms are free to vary the amount of inputs being used. The behavior of production when all the factors are varied is a subject matter of
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस, ठीक है, दीज आर दीज डिड रिसर्च ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। पॉल डगलस, कॉब डगलस बोलते हैं इनको, ठीक है। इनका प्रोडक्शन फंक्शन का क्या था, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। Q इज इक्वल टू के एल ए इंटू सी रेस टू द पावर 1 माइनस ए, वेर Q इज द आउटपुट, L इज द लेबर, C इज द कैपिटल, K एन ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट। इन्होंने बहुत दिन तक रिसर्च किया और उनको ये पता चला कि लेबर का और कैपिटल का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक रेशियो है जिसमें ये लोग प्रोडक्टिव होते हैं। तुमको क्या लगता है, लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव होता है या कैपिटल? है ना, दो ही आंसर थे, तुम साले दोनों ही बोल देते हो। नहीं नहीं नहीं, चूज वन। कॉब डगलस, देखो कोई ऐसा 100% श्योरिटी से नहीं बोलता, लेकिन कॉब डगलस की रिसर्च कहती है कि लेबर कंट्रीब्यूट्स टू 3/4 ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू 1/4 ऑफ प्रोडक्टिविटी। एमसीक्यू प्योर गोल्ड, इसको बिना पढ़े आंसर आप एग्जाम में लिख लोगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। सो गाइस ये याद रहेगा, कॉब डगलस में लेबर 3/4, कैपिटल 1/4। सुनो ना, थोड़ा एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ाना है मैंने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान से, ये समझता नहीं है बच्चों को, दिस इज द पेन इन द एस ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, ये बस कैसे तो ये बस निकल जाते हैं इस पार्ट में से, बस बाहर निकल जाते। कॉब डगलस के बाद हिम्मत ही हार देते बच्चे। कॉब डगलस का फॉर्मूला स्टिकी नोट बना के चिपकाना, रोज पढ़ना उसको, ठीक है। उन्होंने 50 साल रिसर्च किया वो 3/4 और 1/4 ढूंढने के लिए। तुम एक 2 रुपए का स्टिकी नोट नहीं दे सकते उसको, प्लीज दे देना, ठीक है। सो कैसा है कि हमने खरीद ली है एक, ये है हमारी एक्टिवा रे ये हमारी एक्टिवा है, करेक्ट है। इस पे हम अकेले गाड़ी चलाते हैं। एक एक्टिवा कितना एवरेज देती है? 40। वेरी, लेट्स मेक इट इजी, 40, ठीक है ईशा, 40। अब एक बंदा आएगा रोज क्लास, ठीक है, तो उसको मान लेते हैं हर दिन 1 लीटर पेट्रोल लगता है, तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया 100 रुपीज पर डे, करेक्ट। इसको सॉरी 120 का हो गया पेट्रोल, सॉरी 100 रुपये ले लेते ना, कैलकुलेशन आसान होंगे। हाँ तुम्हारा मैथ्स तो मालूम ही है तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे ना, अजम्पशन 100 रुपीज, ठीक है। तो हर दिन का आने जाने का खर्चा 100 रुपीज का हो रहा है, ठीक है, चैतन्य का, ठीक है। अब चैतन्य कह रहा है यार 100 रुपये हो रहा है, किसी को पेट्रोल पार्टनर बना लेता है, तो उसने ले लिया ओम को। अब पर डे कितना खर्चा आ रहा है? 50 रुपीज। अब ओम भी लालची निकला, कहता है तीसरे की जगह है, मैं सरक जाऊंगा थोड़ा ठीक है। अब हमने बिठा लिया सुहास को, सुहास आगे एडजस्ट हो गया, बढ़िया मजे करते करते जा रहे हैं, ठीक है। अब कितना हो गया? 33 रुपीज। खर्चा कम होते जा रहा, 33.33, सॉरी एक पैसा नहीं छोड़ रहा हो लड़का, ठीक है। उसके बाद इनको लग रहा है यार ये क्या है, 25 रुपये, साउंड्स गुड, चौथा भी ढूंढो। तो हमने एक गौरव को बिठा दिया आगे, तो हॉर्न बजा, ठीक है। अब हो गई है 100 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, 25। अब और एक लालची निकले इसमें, गौरव कह रहा है अरे यार एक और पीछे बैठाओ ना, वो पीछे जो जगह रहती ना, वो ऐसा हैंडल रहता पीछे, पकड़ने की क्या जरूरत है, बैठ जा वहां, फंसा तो फंसा, ठीक है तो हमने एक और बंदे को वहां पे बिठा दिया। इस बार गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गई, आगे का चक्का उड़ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के गले में फंस गया। गाड़ी खराब होगी वो अलग, करेक्ट। 1 मिनट, हम अब कैसे हो गया ना, ऑल ऑफ अ सडन हमारी गाड़ी को आ गया 25,000 रुपये खर्चा, समझ रहे हो। तो पहले हमारे पैसे बच रहे थे, पहले हमारे पैसे बच रहे थे। 100 का खर्चा 50 पे आया, 50 का 25 पे आया, 25 का 20 पे आया, लेकिन एक पॉइंट के बाद गाड़ी को बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। रे यानी क्या, पहले हमारी
प्रॉफिट है वो बढ़ते जाता है, लेकिन तुमने एक फैसिलिटी को ओवर यूज कर लिया तो कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। समझा? यानी कॉस्ट कम होती गई तो रिटर्न ज्यादा होते गए, लेकिन एक पॉइंट के बाद कॉस्ट कम करने के चक्कर में तुमने मशीन ही खराब कर दी, तो यहां पे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सुपर कूल? पक्का? In the short run, the input-output relations are studied in one variable labor with all the other inputs held constant. The laws of production under these conditions are known as, various names as the law of variable proportion. As the behavior of output is studied by changing the proportion, the law of returns to variable input, or the law of diminishing returns, as returns eventually diminish. तुम भी देख लो ना, खुद को ही देख लो, कितना समय मैक्सिमम पढ़ सकते हो एक सिटिंग में? 3 घंटे का प्लान बनाते हैं हम लोग तो 2 घंटा अच्छे से पढ़ते हैं, फिर जो तीसरा घंटा रहता ना, पहले एकदम जो बैठते सारा एकदम अच्छे से लिखते बैठते, फिर धीरे से ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे से ऐसे, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि फैल ही जाते पूरा इसमें तो लाइब्रेरी लगाते बच्चे, समझे क्या? सो गाइस ये क्या है, तीसरा घंटा जो रहता है वो इतना आउटपुट नहीं देता। तीसरे घंटे में हमने टाइम टेबल बनाता है, इसलिए ड्रैग करते हैं हम लोग, करेक्ट है? थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना ही पड़ता है ना बीच में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही काम करता है वहाँ पे। कोई भी सब्जेक्ट एक समय पे 2.5 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो, फाउंडेशन में 2.5 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो, ब्रेक ले, अगर लेना है तो एट अ स्टेज नहीं, ब्रेक ले लेके पढ़ो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है? तो 3 कंसेप्ट है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या ही बताना है, टोटल प्रोडक्ट इज वॉट एवर इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है? सो बस ये मुझे बताओ, टोटल प्रोडक्ट का पैटर्न ढूंढो जरा, टोटल प्रोडक्ट का पैटर्न ढूंढो। जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाते हैं, टोटल प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, ट्रू और फॉल्स? चेक इट आउट। जैसे जैसे हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं लेबर का, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, ट्रू और फॉल्स? पहले 100 हुआ, फिर 210 हुआ, फिर 330 हुआ, बहुत बढ़िया, फिर 440 हुआ, बहुत बढ़िया, 550 में 550 होना चाहिए था यार, यहाँ करेक्ट है क्या? 550 नहीं हुआ, कम हुआ, फिर 600, फिर 700, वैसे बढ़ रहा है, लेकिन यार वो प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा, जैसे पहले का घपाघप बढ़ रहा था, डबल। गाइस यहां पे आके देखो ना, 11वां प्रोडक्ट जब हमने बनाया तो 11वां प्रोडक्ट तो बनाना नहीं चाहिए था, हमने देखा आपने, 750 के बाद 740 हो गया। ओ गॉड, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। So with 1 unit of labor is employed with other factors of production, the total product is 100 units. Then वैसा when 11 units of labor are employed, TP falls to 740 due to the negative returns from the 11th labor. Okay, so guys बढ़ते नहीं जाता है वो, क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सब बढ़ने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे 11वां लेबर का काम ही नहीं है, अपने पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ही नहीं कि इतने लेबर झेल सके। 3 रूम का घर है, 6 बाई है तुम्हारे यहां, क्या क्या पूछेगी वो? घर पे रहने वाले लोग 2 और तुम्हारे यहां काम करने वाले 6, दिस इज रॉन्ग नो। 3 रूम के घर के लिए कितने लोग चाहिए तुमको मैक्सिमम? 3 का कुछ 1, समझ रहे हो? उतना कैपेसिटी नहीं है बेटा। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ, रेज योर हैंड्स। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ। कम ऑन, बना सकते हो ये तो। सुहास बोल बेटा। नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना? ठीक है, मेक सेंस। रेज योर हैंड्स। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ। मार्जिनल, कम ऑन, इजी है ना? मार्जिनल, ईशा। टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth कमोडिटी माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1th कमोडिटी, याद रहेगा ये पक्का? मार्जिनल का हर जगह यही नाटक है। ठीक है? सो एवरेज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ। तो आपका क्या इंक्रीमेंट हुआ टोटल प्रोडक्टिविटी में हर एक्स्ट्रा यूनिट के कारण, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है? सो गाइस टोटल प्रोडक्ट का कैसे बनेगा ग्राफ? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इस पॉइंट के बाद कम होते जाएगा, नेगेटिव रिटर्न देता है वो। समझ रहे हो? यहां तक ठीक है? उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा?
ऐसे बनेगा, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ नेगेटिव कैसे जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ नेगेटिव कैसे जा रहा है? सर 1 पॉइंट के बाद 750 के बाद 740 हुआ था प्रोडक्टिविटी जब नेगेटिव होती है तब, ठीक है। तो गाइस रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, सुनो ना, इसको स्टामा करके रख दो, इस पॉइंट पे ना एक फ्लैग लगा दो, ये एग्जाम से पहले जरूर ऋषि का पढ़ के जाना है हमको, ठीक है। व्हेन एपी राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। तो गाइस अगर हम लोग देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट, रेड में कर देता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट और जो एवरेज प्रोडक्ट है, तो जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जाता है ना एकदम फास्ट पेस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, तब तक यानी जब तक के हमारा जो है वो बढ़ते जा रहा है, तब तक एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। कब तक? when AP rises as a result of increase in quantity of variable input, marginal product is more than the average product. when the average product is maximum, कहां है average product maximum? average product maximum कब है? average product maximum कब है देख लो तुम, S पे। is it the point of inflection? no, it is not। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है क्या? रेजोनेंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, क्या खास बात है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की? करेक्ट, इसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है, बढ़ती है बट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। नहीं समझ रहा? पक्का? सो गाइस, when the AP rises as a result of increase in quantity of variable input, the marginal product is more than the average product. Average product is maximum, marginal product is equal to the average product. In other words, marginal product curve cuts the average product at the maximum. एक मिनट देख लेते हैं। marginal product cuts average product at maximum. average product maximum कौन से लेवल पे है? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे marginal product cuts the average product. average product के maximum पॉइंट पे marginal product उसको कट करता है और उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट गिरते जाता है। एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट गिरता है या मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट गिरता है? मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत गिरा हुआ है, वो जल्दी गिर जाता है वो। एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट। तो जब आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट उसको सेम, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेम होता है, उतना ही होता है। और जब एवरेज प्रोडक्ट गिरते जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे कम होता है, हमेशा ज्यादा गिरा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, सो गाइस या दैट्स दैट। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या खास बात है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या खास बात है? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है और उसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। दैट्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। रेज योर हैंड्स, दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। रेज योर हैंड्स। यहां पे इंक्रीज हो रही है, यहां पे सॉरी ना कलर चेंज कर देते, इंक्रीज हो रही है, यहां पे इंक्रीज हो रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और यहां पे तो भाई साहब गिर ही गए हम। रेज योर हैंड्स। A rational producer, do not leak the answer. 3 stages है। An important question is, at which stage of a rational producer will produce? कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन होना चाहिए? जो भी आपका आंसर ऐसा लिख के दे दो मुझे, एक पेज वेस्ट होगा बट इट्स ओके। भव्या, ठीक है, वेरी गुड। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 वालों रेज योर हैंड्स, स्टेज 1 वालों रेज योर हैंड्स। स्टेज 1 ओम, विशाल एंड साक्षी, 3 लोग। स्टेज 2 वालों रेज योर हैंड्स। स्टेज 3 वालों, 3 तो सर इतने बर्बाद थोड़ना है हम। सो स्टेज 3 तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया।
स्टेज 3 तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, स्टेज 3 आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब बचा स्टेज 1 स्टेज 2। साक्षी स्टेज 1 कैसे, ये तेरा क्या लॉजिक था? बकाबक बढ़ रहा है, बढ़िया है यही। स्टेज 1 क्यों बोला, फिर स्टेज 2 वालों को परेशान करता है? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है स्टेज 2 में। पर वो थोड़े टाइम के बाद डिमिनिशिंग रेट पे हाँ पन वो, हाँ ठीक है। ओम व्हाट इज योर लॉजिक? हाँ बढ़िया, बढ़ रहा है, बाद में कम होने वाला है, काय को बढ़ना उसको, है ना। हाँ और कौन था, विशाल? हाँ स्टेज 1 क्यों बेटा? हाँ तो अब वहां तक बना लो कम से कम ऐसा, ठीक है। प्रसन्ना वाई स्टेज 2, व्हाट इज योर लॉजिक? सर वहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता है, इक्वल क्या इक्वल हो जाता है? टोटल प्रोडक्ट में नहीं ना, कहाँ इक्वल हो रहा? और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, हाँ हाँ यहाँ यहाँ करेक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है इस स्टेज पे, ठीक है सही बोला, जीरो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट तक जहाँ पे वो कट करता है लेवल, मार्जिनल प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट तक, तो वहाँ पे वो अपन कहाँ, कट ही नहीं कर रहा ना, कट ही नहीं होगा कभी, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कट ही नहीं होंगे कभी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा कम रहेगा। इक्वल कहाँ है, सुनना सुनना सुनना, टोटल प्रोडक्ट इक्वल मार्जिनल प्रोडक्ट से इक्वल होना ये सिर्फ पहले यूनिट पे हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा वो स्टेज 2 तक, फर्स्ट में स्टेज 2 तक क्या पॉजिटिव रहेगा? टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव कब हुआ? सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट। एक मिनट, मैं डांट रहा क्या देखो, मैं तेरा आंसर गलत होकर डांटूंगा कि मैं देखो, तो घबरा क्यों रही? एग्जाम में तुमको यही झेलना है, तुम लोग प्रेशर में आ जाते, डरना नहीं बिल्कुल। एनीवन हैज अ बेटर आंसर? यानी चैतन्य बोल। हाँ वेरी नाइस, तो ठीक है, मजा नहीं आया आंसर में सर। मैडम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। अरे भाई बढ़ रहा है ना, कम बढ़ रहे तो क्या हुआ, समझ रहे हो ना? स्टेज 1 से स्टेज 1 के कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन यार बढ़ तो रहा है ना, पूरा यूज तो कर लो, अपने रिसोर्सेज पूरे यूज करना चाहिए जब तक कि हमको नुकसान होना स्टार्ट नहीं होता। नुकसान होना स्टार्ट होता है स्टेज 3 में। रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन स्टेज 2। स्टेज 1 वालों, स्टेज 1 में बनाओगे तो आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे हम लोगों ने 3 घंटे सो लिए, 3 घंटे पढ़ाई कर लिए, तो यार बहुत पढ़ लिया, अब सो जा, ऐसा सो जाते कि हम लोग नहीं ना, हम पूरा जब तक के सही में पूरी नींद नहीं आ जाती तब तक के पढ़ते जाते हैं। तो स्टेज 2 विल बी द राइट ऑप्शन। A rational producer will always produce in stage 2, where both MP and AP of the variable factors are diminishing. At which particular point in the stage the producer will decide to produce depends on the prices of the factors. The optimum level of employment of variable factor will be determined by applying the principle of marginalism in a way that marginal revenue of product labor is equal to marginal wages. यानी हम लोगों को जितनी कॉस्ट लग रही है कम से कम उतना रेवेन्यू तो हमको मिले, कम से कम इतना हमको आना चाहिए। तो सुनना प्रसन्ना, तो ऐसे घबरा के आंसर खराब मत करना बेटा। You are better than what you are while representing your own answer. सबसे अच्छी बात है इकोनॉमिक्स बीसीके की, तो एक्सप्लेनेशन किसी को देना नहीं है, तो हैव अ क्लियर माइंड, ऐसा घबराना नहीं बेटा, समझ रहे हो? और तुम लोगों को जिसको भी ये थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना, तुमको जिसको भी अच्छे से नहीं समझा है, मैं अच्छे से एक एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। अभी तो मैं आपको सबके सामने ये नहीं बता सकता, मैं सबके सामने नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। किसी को कोई भी पॉइंट समझने में प्रॉब्लम है ना, आई विल डिस्कस यू विद यू आफ्टर द क्लास। तो गाइस गुड आंसर, वेदांती, आदित्य, आयुष, अद्वैत, राजेश्वरी, जयांश, बहुत अच्छा आंसर, परफेक्ट। रिटर्न्स टू स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्केल? एकदम जबरदस्त आंसर देते हो, मजा आ जाएगी तुमको। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? स्केल यानी क्या? पार्थ, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल बेटा? स्केल का मतलब
स्केल यानी जब हम अपना आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्केल. स्केल यानी अपग्रेडेशन, स्केल यानी अपग्रेडेशन लेवल. ठीक है. सो रिटर्न्स टू स्केल कैसे होते हैं? द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन स्केल. यानी सुनो ना, जैसे मैंने 2 व्हीलर ली थी, अब मैंने 4 व्हीलर ले ली, तो क्या मैंने स्केल बढ़ा दी? हाँ, इसको कहते हैं स्केल. सो द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द स्केल. रिटर्न्स टू स्केल फेस बाय द फर्म आर solely technologically determined and are not influenced by economic decisions taken by the firm or by market conditions. Returns to scale faced by the firm are solely technologically determined. इसमें हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर नहीं कर रहे, ये हमारा अजम्पशन है. तो पहला है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कैसा होता मैं बताता आपको. हमने एक्टिवा खरीदी 1 लाख रुपए की. तुम अभी 1,05,000 या 95,000 मत बोलना प्लीज. लेट्स मेक इट इजी फॉर आवर ओन मैथ्स. हमने 1 लाख रुपए की क्या खरीद ली? एक्टिवा खरीद ली. एक्टिवा में कितने लोग जा पाते आसानी से? 2 ही अलाउड है. 2 पैसेंजर्स अलाउड है. ठीक है. फिर हमने खरीदी अल्ट्रो. अल्टो में कितने लोग बैठ सकते बताओ? देखो भरना नहीं है. कितनी सीटर रहती है कार ऑफिशियली? 5 सीटर होती है. ये 5 सीटर का लाइसेंस मिलता है इसमें. यानी आप देखो ना, ओला जो हमारी फैमिली कार में हम कितने भी घुसेड़ ले, छोटे बच्चों को डिक्की में डाल देते हैं लोग. लेकिन ओला उबर में आप ज़्यादा लोग बैठने की कोशिश करो, नहीं बैठने देता. वो कहता है सर 3 पीछे बैठेंगे, 1 मेरे साथ बैठेगा, बस दैट्स इट. ठीक है. तो 5 एक्टिवा में 2 लोग बैठ सकते हैं. कितने रुपए की है? 1 लाख. यानी पर पैसेंजर कितना पड़ गया? 50,000. व्हाट नॉलेज, मजा आ गया. यहाँ पे 5 कार कितने की है? 2.5 लाख की. पर पैसेंजर कितना हुआ? 1 लाख में 2 पैसेंजर, 2.5 लाख में 5 पैसेंजर, पर पैसेंजर कितना हुआ? 50. यानी हमने अपग्रेड किया, लेकिन पर पैसेंजर कीमत उतनी ही है. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. समझा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. विद स्टेटेड कांस्टेंट रिटर्न स्केल मींस इंक्रीज इन द स्केल इन सम proportion, आउटपुट इंक्रीज इन द सेम proportion. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अदरवाइज कॉल्ड एज लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन. MCQ गोल्ड. लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. जितना आउटपुट बढ़ाओ उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सिंपल. उतने से ही, उतने ही प्रोपोर्शन में, उतने ही परसेंटेज में. तो इसको कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. नहीं समझा? और पढ़ाओ, अलग पढ़ाओ. सुना ना, अब जो दिमाग लगाओ. ठीक है, अब दिमाग लगाओ. सुना ना, एकदम एक्सक्लूसिव एग्जांपल से ही है. विशाल सुहास सुन बेटा, ये एकदम ये समझता नहीं स्टूडेंट्स को. ये क्या है रे? इज गोल्ड, छोटा हाथी. ठीक है. और ये क्या है? बड़ा हाथी. हाँ ठीक है. 7.5 लाख रुपए का आता है ये. 750 किलो झेल सकता है छोटा हाथी. 7.5 लाख रुपए, 750 किलो. ठीक है. और ये ट्रक जो है, ये मान लेते 15 लाख रुपए का है. हाइपोथेटिकल है ये, 15 लाख रुपए का नहीं है, थोड़ा और भी महंगा था, लेकिन हमको समझना है कंसेप्ट. 7.5 लाख, 750 केजी. 15 लाख कितना केजी है ना? 1,500 होना चाहिए. अगर 7.5 लाख रुपए खर्च के मुझे 750 किलो का लोड बेयरिंग मिलता है कैपेसिटी, तो 15 लाख मिल के अगर मुझे 1500 मिलना ही चाहिए. करेक्ट है. अगर डबल कर दिया मैंने, तो मेरी कैपेसिटी भी बढ़ जानी चाहिए डबल. तो एक कैसा रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. करेक्ट है. अब बड़ा जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी है 2250 केजी. इसकी कैपेसिटी है 2250 केजी. ओए सर, पैसे डबल हुए लेकिन कैपेसिटी कितने गुना बढ़ी? 3 गुना. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. कंसेप्ट समझा? और अगर ये 1 का 1, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. 1 का 2, 2 का 6, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सुपर कूल. पक्का क्लियर है? और
1:1 था, तो 2:2 होना चाहिए। 1:1 होने के बाद 2:1.5 हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। प्रोडक्शन कितना करें, कितनी क्वांटिटी में करें, बताओ, तुम ही बता दो, प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में करें? मैक्सिमम करेंगे तो जल जाएंगी ना मशीनें। हाँ वेरी गुड, डिमांड भी ले आओ अभी। क्वेश्चन समझ रहा है ना मेरा? हाँ, मशीन की कैपेसिटी तो पूरा यूटिलाइज कर लो, कैपेसिटी कम से कम करूँ, ज़्यादा क्या करना, इन्हें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कम से कम। चलो, नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नोन एज कंबाइनिंग द फर्म्स प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन नेम एज आइसो कॉस्ट एंड कॉस्ट लाइन्स। तो सबसे पहला एक कंसेप्ट है आइसो क्वांट। क्वांट में कौन सा वर्ड छुपा है? क्वांटिटी। आइसो यानी क्या रे? derived from the quantity, and the Greek word iso means equal. An isocont represents all those combination of inputs say x and y which are capable of producing the same level of output. All those combination of inputs x and y which are capable of producing the same level of output. एक minute. Do you remember? Do you remember this indifference curve? Do you remember this clothing and food? पक्का याद आ रहा है? रेज योर हैंड्स। डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल सवाल है, पूछ ही लेता हूं अभी। अगर मैं एक ही जगह मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा? रेज योर हैंड्स। एक ही जगह मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ईशा, एक ही जगह मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स बना दो। प्रसन्ना, हर्ष, इंडिफरेंस मैप। क्या इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? रेज योर हैंड्स। क्या इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? साक्षी, कभी नहीं कर सकते। व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? डैश टू द ओरिजिन। रेज योर हैंड्स। काफी लोग ऐसा करके दिखा रहे हैं, वेरी नाइस। एग्जाम में कैसा करोगे? ऐसा? हाँ मैडम, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाट नॉलेज, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। रेज योर हैंड्स। क्या इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सिस को टच करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद आ रहा है कुछ? इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? ये इसका मुझे सिखा दो, इससे मुझे सिखा दो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। वेरी गुड वेदांती, जिशान, बहुत अच्छा आंसर्स। वेरी गुड फाइजाल, लाइक करो, लाइक करो। हाँ जी, कहाँ है? इंडिफरेंस कर्व का एक्सप्लेनेशन कौन देगा? प्रिंस बोल। सेटिस्फैक्शन नो मैटर व्हाट कॉम्बिनेशन दे गिव अस। करेक्ट है? अब सुनो ना, आइसो क्वांट में हमें इंडिफरेंस कर्व के लाइंस पे ही बनाना है। फैक्टर एक्स रहेगा, फैक्टर वाई रहेगा। करेक्ट है? फैक्टर एक्स रहेगा, फैक्टर वाई रहेगा। तो गाइस फैक्टर एक्स का मैं एक यूनिट बढ़ा देता हूं तो फैक्टर वाई की कितनी यूनिट्स कम हो जाएगी? फैक्टर एक्स का अगर एक फैक्टर बढ़ा देता हूं मैं तो फैक्टर वाई की कितनी यूनिट्स कम हो जाएगी? करेक्ट है? उसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कल हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा था, लेकिन हम प्रोडक्शन बढ़ रहे तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो जैसे जैसे एक एक फैक्टर, सर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन ले आओ, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन ले आओ, आउटपुट विल बी द सेम। आउटपुट विल बी द सेम। तो गाइज उसको कहते हैं आइसो क्वांट। आइसो क्वांट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट गिव द सेम आउटपुट। तो गाइज सुनो ना, कॉनकेव टू द ओरिजिन और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बताओ। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और रेज योर हैंड्स। मैं इस पॉइंट पे बनाऊं, 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 किसी भी पॉइंट पे आउटपुट का लेवल क्या है? इसलिए तो नाम है आइसो। आइसो ने इक्वल, क्वांटिटी है ना आउटपुट। एंड आइसो क्वांट रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एक्स एंड वाई व्हिच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है? इट इज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है?
रेज योर हैंड्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैंने बनाया आइसोक्वान 2, IQ2, IQ एंड IQ2 किस में आउटपुट ज्यादा है? रेज योर हैंड्स। एक दिन एब्सेंट है, सब बर्बाद कर दिया ना प्रसन्ना? कल ऑनलाइन में तो नहीं थे तुम, दिखे नहीं मुझे, क्यों नहीं बेटा? रेज योर हैंड्स, किस में हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? गौरव बोल। IQ2, जैसे इंडिफरेंस मैप में हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस मैप, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वैसे। रेज योर हैंड्स। सर इतना पैसा दे सकते हैं, इसके बाहर पैसा नहीं दे सकते सर। और एक और नाम है बजट लाइन का, व्हाट नॉलेज, मजा आ गया भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस जो लोग कल एब्सेंट थे, ठीक है, मैं यही कह रहा हूं आपको, प्रॉब्लम यही स्टूडेंट्स की, सेकंड चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते और फिर थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर पे डिपेंडेंट है, फिर सेकंड भी छूट गया आधा, थर्ड भी आधा छूट जाता, और फिर चौथा में सेकंड और थर्ड चैप्टर टुगेदर दे आस्क। तो ऐसे इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर के नेक्स्ट इज आइसो कॉस्ट। आइसो यानी क्या? कॉस्ट यानी क्या? कॉस्ट। आइसो कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज बजट लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट लाइन, all those combination of inputs x and y which are capable of buying a particular cost. Figure shows different combination of factors that can be purchased at a certain amount of money. ठीक है? So guys, ये कैसी लाइन्स है? आइसो कॉस्ट लाइन्स। ठीक है? So guys, आइसो कॉस्ट यानी क्या रहेगा? इक्वल कॉस्ट, यानी तू कुछ भी ले ले, AB पे, BD पे, EF पे, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो भी होगा, EF पे कोई भी कॉम्बिनेशन में कॉस्ट विल बी सेम, CD के कोई भी इसमें कॉस्ट विल बी सेम, AB की कोई भी कॉस्ट विल बी सेम। रेज योर हैंड्स। सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन से इसमें? EF में सबसे ज्यादा कॉस्ट लगेगी। हायर विल बी द क्वांटिटी, हायर विल बी द कॉस्ट। चलो अब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन सही है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करना है, कितना प्रोडक्शन करना है? बेस्ट आउटपुट कम लीस्ट कॉस्ट में, करेक्ट है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लीस्ट कॉस्ट। तो हम लोग बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप से क्या निकाले थे हमने? रेज योर हैंड्स। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से हमने क्या निकाले थे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसे भूल गए तुम सोनू भैया को? बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप से हमने लाया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट को एक साथ क्या करेंगे बोलो? मर्ज करेंगे। रेज योर हैंड्स। ठीक है, रेज योर हैंड्स। हमें कम, सबसे कम पैसों में बनाना है, करेक्ट? कौन सा ऑप्शन? रेज योर हैंड्स। हमें सबसे कम पैसों में बनाना है, कौन सा ऑप्शन? सबसे कम पैसों में बनाना है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, रेज योर हैंड्स। A, B, C, D, E। कितने लोग सी कह रहे हैं? क्यों? ई में क्या खराबी है? एक मिनट चैतन्य, ई में क्या खराबी है बेटा? अरे नहीं पता, कैसे? ऐसा कैसे? दिमाग लगा ना। ई में सबसे ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अच्छा ए में? गौरव ए में क्या प्रॉब्लम है? सर जितनी कॉस्ट ई में लग रही है उतनी कॉस्ट ए में लग रही है। रेज योर हैंड्स। हु विल जस्टिफाई? जितनी कॉस्ट ए में लग रही है उतनी कॉस्ट ई में लग रही है। ये स्टेटमेंट कैसे पॉसिबल है? साक्षी कैसे पॉसिबल है बेटा? वेरी नाइस। जितनी कॉस्ट ई में लग रही है उतनी कॉस्ट ए में लग रही है। सेम लाइन, उसको क्या कहते हैं? कौन सी लाइन? लाइन का नाम क्या है? आइसो कॉस्ट है ना वो सब। वो सेम आइसो कॉस्ट पे है तो सेम कॉस्ट लगेगी। सही बात है। तो बी में क्या प्रॉब्लम है? सर बी में ए इतना तो नहीं लगेगा लेकिन ज्यादा ही लगेगा। सबसे कम कॉस्ट वाला लाइन सी एमएम वाला ही लग रहा है, और एमएम में ठीक है, और आइसो कॉस्ट भी हो गया और हमारे पास हमारा क्वांटिटी भी ऑप्टिमम आ गया, हमारा कॉस्ट भी कम से कम आ गया। तो दीज आर द लीस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। समझा? ये दो चीजों को कितने लोगों को नहीं समझे? फिर से पढ़ा दूं? पक्का? ये आइसो कॉस्ट है, इसमें सेम कॉस्ट रहेगा किसी भी कॉम्बिनेशन में,
तो गाइस जितना ज्यादा हाई रहेगा उतना ज्यादा कॉस्ट ज्यादा रहेगा, जितनी अंदर रहेगी लाइन उतनी ज्यादा कॉस्ट कम रहेगी। तो हमको कम पैसों में बनाना है और ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। तो इनको मर्ज करके लीस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन फैक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा आगे, हमें ये सब डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं कि कितना कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हमारा कीमत कम से कम हो। ओके सुबकुल, चलो लेट्स गो फॉर द क्विज गाइस। मैं आपको लिंक भेजता हूं, गिव मी सम टाइम, तब तक तुम लोग पढ़ाई कर लो। भवे देखी क्या, क्विज देखी क्या? सुनो भाई, भव्य से नहीं हारेंगे हम लोग, ठीक है। इंटर वाले आके फाउंडेशन में तबाही कर देंगे तो क्या मतलब है। साक्षी, कैन आई हैव योर आई बॉल? Did you get the link? पार देख लिंक मिला के बेटा। ऑनलाइन वालों मैं भेज रहा हूं, यूट्यूब वालों डोंट वरी। यस, लिंक सेंड निरंजन, वेरी गुड। फैजल, आज भी फर्स्ट आना है क्या बेटा? ऑलराइट, शैल वी गो अहेड? शैल वी स्टार्ट द ऑनलाइन गाइज? सब अच्छे से ब्रशअप हो रहा है? सब अच्छे से ब्रशअप हो रहा है? विल इट हेल्प? एग्जाम में अच्छा करोगे? ऑलराइट, हाँ विशाल आ गया, सुयश आ गया, पूर्णिमा, हाँ बेचारे ने हाँ बोल दिया, मैंने नाम भूल जाता है इसका। चलो शैल वी स्टार्ट? शैल वी? ओके, चलो गाइज, हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, so guys, here goes the first question. Come on, go, 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 guys. So marginal product पूछा उन्होंने थर्ड यूनिट का, थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पूछा है।
सो गाइस थर्ड यूनिट का पूछा ना, तो आपने 450 माइनस 350 करना चाहिए था, किया है? हो गया? गलत हुआ? नहीं होगा गलत। फैजल, आर्य, चैतन्य, गौरव, पार्थ, इशिका, जयसिंह ठाकुर, वेल डन जयसिंह। देन हर्ष, निरंजन एंड विशाल राठी, वेल डन। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था यार ये तो, गलत हुआ। ओके, शall we? Go guys, come on. So land is an active factor. Land is it active? Passive it is. It is permanent as an indestructible powers, ये सही है. It is a free gift of nature, ये भी सही है. It supplies fixed, ये भी ठीक है, यानी सही है, ये गलत नहीं है. सारे ऑप्शन सही है. गलत पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. हर्ष वॉज द फास्टेस्ट इन दिस. हर्ष ऊपर आएगा शायद. ठीक है, गुड. कम ऑन गाइस, गो अहेड. Go. Four P's of marketing: product, price, place, promotion. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो सिखाया ना, लर्न करवाया है. एंड देन पब्लिक रिलेशंस, ये नहीं है, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है मार्केटिंग में. वो पार्थ इज हंटिंग. गौरव आगे निकल जाएगा मेरे ख्याल से. ये क्या बात है गौरव, कहाँ से लाया हेमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया. पार्थ, देन इशिका, फैजल, निरंजन, विशाल, जिशान, हर्ष एंड बीबी. ठीक है. All right, guys, go. Physical good like building, plant, machines are covered under which type of capital? भाई अच्छे से पढ़ा है, ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा. गलत हो गया था. तुम लोगों को बोला था मैंने, इसका ध्यान से करना, सुनते नहीं तुम लोग. द आंसर इज रियल कैप, फिक्स कैपिटल. व्हाट इज फिक्स कैपिटल? फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स कैपिटल थोड़ी होता है. द आंसर इज रियल कैपिटल. खोलो नोट्स, खोलो नोट्स, जस्ट ओपन अप द नोट्स एंड चेक आउट. वहां पे दिया है ना सब. बिल्डिंग है क्या? वेरी नाइस. प्लांट है क्या? सॉरी. ओके गाइस, याद रखोगे गाइस, वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है. बस तुम क्विज में राइट हो, इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. गौरव इज ऑन फायर. ठीक है, चलो कोई नहीं. अरे बहुत क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है अभी भी. गो. Vedanti wishes to know the situation in which law of variable proportion does not apply.
पढ़ो ना, बहुत टाइम है, 8 मिनट दिए तुमको पढ़ने के लिए 8 मिनट दिए है। द फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स प्रपोर्शन। अगर सारे फैक्टर्स फिक्स प्रपोर्शन में यूज होंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कैसे होगा? ये तो लॉजिकल था इसका आंसर। कुछ नहीं समझा? देखो मैं क्वेश्चन समझाता तुमको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नाम क्या है लॉ का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी जैसे जैसे चीजें वेरी होती है। अब अगर सारे फैक्टर्स तूने फिक्स प्रोपोर्शन में यूज कर लिए, सारे फैक्टर्स तूने सारे फिक्स यूज कर लिए कि इनपुट भी नहीं बदलेगा तो आउटपुट भी नहीं बदलेगा, तो भाई वेरिएबल होगा ही नहीं ना कुछ। समझ रहे हो क्या? वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमारी मशीन की कैपेसिटी फिक्स्ड है और हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब इनपुट वेरी हो रहा, तभी तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। एक्टिवा है हमारी, एक्टिवा पे 2 बिठा रहे, 3 बिठा रहे, 4 बिठा रहे, 5 बिठा रहे, उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट देख रहे हैं और फिर रिटर्न चेक कर रहे हैं। समझा क्या? सब कुछ फिक्स्ड है तो गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा था ये क्वेश्चन। इज अ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश CBSE। सो पार्थ इज फर्स्ट। बीबी कौन है? वो बीबी, वेरी गुड। तो ऐसे थोड़ी ना पास हुई। तो नेक्स्ट, go guys। द आंसर इज अन प्रॉफिट। वो तो ट्रेडर भी बना रहा है ना प्रॉफिट भाई। वो इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसे हुआ? बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, शादी करने के तुमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आंसर इज इनोवेट। Arya is, I guess Arya is the fastest. Come on, 4 more questions to go. You can still turn it around. Come on, go guys. पढ़ना आराम से साक्षी, टाइम है ना। Diminishing marginal returns for the first 4 units of variable input is exhibited by the total product sequence. Diminishing marginal returns for the first 4 units of variable input is exhibited by, the answer is 50, 90, 120, 140. ये कैसे हुआ है सर? कितने लोगों को कहना है सर सी सही लग रहा? 50, फिर 100, फिर 150 और फिर 200। दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर आपको ये समझ गया कि सर ये तो है ही नहीं आंसर, पहला वाला तो एकदम बेवकूफ है कि हम लोग इनपुट बढ़ाए जा रहे हैं और आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एकदम बेकार है। ठीक है, और हमें चाहिए, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सुनो ना, बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में क्या प्रॉब्लम है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है उसमें 50, फिर 110, फिर 180। पहले का डिफरेंस 60, दूसरे का डिफरेंस 70, तीसरे का डिफरेंस 80। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वहां पे, करेक्ट है क्या? और चौथे इसमें पहले 50 हुआ, 50 से 50 नहीं बढ़ा, 50 से 40 बढ़ा, फिर 40 से 30 बढ़ा, 30 से 20 बढ़ा। यानी इनपुट बढ़ाते जा रहे तो आउटपुट कम होते जा रहे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है ये। समझ रहे क्या? पक्का? हम गॉट इट राइट। और सर समझ के क्या मिला सर? सुहास नहीं समझा? नहीं क्लिक हुआ? वेरी नाइस, लेट्स चेक इट आउट। फैजल, ये आंसर फैजल गलत नहीं कर सकता। ये आंसर पार्थ वाज वेरी फास्टेस्ट। चलो कोई नहीं, 3 more questions to go. Come on guys, go.
कम ऑन विराज, कहाँ है तू? क्विज में कहीं दिख नहीं रहा, क्या हो गया? आयुष सिंह, वेर आर योर आंसर्स? व्हाट्स द आंसर गाइस? The answer is B. The marginal product curve lies completely below the average product curve. Guys, इसका स्टिकी नोट बना हुआ है आपके घर पे? स्टिकी नोट बनाना है, इसको भी भूलने का कोई चांस ही नहीं, हम लोग मौका नहीं छोड़ेंगे. ओह, फैजल वाज द फास्टेस्ट. बेचारे का एक गलत हो गया तो पीछे आ गया वो. Come on, go 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 guys. Next question. Which of the following statement describes the increasing returns to scale? Doubling all the inputs used to double the output. Increasing the inputs by 50% leads to 25% increase. Increasing inputs by 1/4 leads to an increase in output of 1/3. सही है क्या? 25% से increase किया तो output बढ़ा 33% से. Correct. C was the answer. कितने लोग फंस गए इसमें? विशाल फंस गया क्या? कैसे फंसा? कोई नहीं हरा सकता पार्थ को, बस वो खुद ही हरा सकता है. ये क्वेश्चन समझा के सबको? ये सिखाओ. पहले इसमें डबलिंग ऑल द इनपुट्स, डबलिंग ऑफ ऑल द आउटपुट्स, ये क्या है? सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. ये दूसरे इसमें क्या है? 50% का इनपुट बढ़ाओ तो 25% से आउटपुट रहे तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. नन तो जाने दो, बस 1/4 और 1/3 का मीनिंग समझना था हमको. खा लो पूरे नाखून, उससे सही हो जाएंगे आंसर्स. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. कम ऑन गाइस, लास्ट क्वेश्चन. गो गो गो. The producer is in equilibrium at a point where the cost line is 30 सेकेंड का. थोड़ा सा आप ये कर लो, आपको आंसर पता चल ही जाएगा. इक्विलिब्रियम कौन से दो क्रॉस, इक्विलिब्रियम के लिए कौन से दो लाइंस क्रॉस करनी पड़ती है? आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट. परफेक्ट. द आंसर इज टेंजेंट. लेट्स चेक आउट द फाइनल लीडर बोर्ड. पार्थ शुड विन इट आई गेस इजीली. या गौरव, गलत कैसे हुआ बेटा? Okay, so Parth is the winner, then Bhavya, then Faijal, then Niranjan, then Gaurav, then Vishal, then Ishika, Harsh, Nikita and Rajeshwari. Well done guys, बहुत बढ़िया. निरंजन सॉरी बेटा, क्वेश्चन लैग हो रहा, कुछ नहीं कर सकते. ओके सो गाइस, छोटा सा एक चैप्टर कर लेते हैं, बिजनेस साइकिल. हाँ, ब्रेक चाहिए आपको? All right. So guys, that's it as far as the production unit is concerned. We will see you soon in the next lecture.